Hello and welcome to learning session number 3 of chapter number 5, which is towards green energy of your science 2 textbook. Okay, so till now we have seen the topics we have covered are first we had seen energy. So we had revised the definition of energy, which is capacity of a body to do work. Then we had seen different types of energy, mechanical energy and potential energy. Then we had also seen different forms of energy, heat energy, sound energy, etc. Then we had seen generation of electrical energy. We had seen Michael Faraday's electromagnetic induction principle. And in the last learning session, we had seen how thermal power plants work and what are the problems with thermal power plants. Okay. In today's session, we're first going to see what is nuclear fission. Okay. I'm going to repeat that: nuclear fission. The way you pronounce this word is fission. So we're going to see nuclear fission, and then we're going to see how nuclear power plants work and what are the problems with nuclear power plants. Okay. So these are the new words that we're going to learn today. First word is dispose, second is fatal, third is meltdown. Okay. So there's a can you tell question page number 50 which asks how does nuclear fission take place? So basically we should know what nuclear fission is to write the answer to this question. Okay, how does nuclear fission take place? So I'm not going to give you all the answer to this question. I'm going to explain what nuclear fission is, and then you all are going to write the answer by yourself. Okay, so let's just see nuclear fission through this diagram. So first of all, see what do we have here. What we have here is basically the nucleus. So you all remember the structure of an atom, right? At the center there's a nucleus. In the nucleus there are neutral as well as positive particles. The neutral particles are known as neutrons. The positive particles are known as protons, right? And uske aju baju in different orbits there will be electrons circling the nucleus. So this is only the nucleus. Of which element? The element's name is, the symbol is U. So U से कौन सा एलिमेंट आता है? यूरेनियम. ओके, सो यूरेनियम में जो न्यूक्लियस है ये उसका फोटो है. ओके, व्हाट डज 235 मीन एंड व्हाट डज 92 मीन? 235 उसका एटॉमिक मास नंबर है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 235. और 92 क्या उसका एटॉमिक नंबर. सो उसमें कितने प्रोटॉन्स है? 92. सो 92 प्रोटॉन्स, 235 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके, बट अगर इतने सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स साथ में रहेंगे उसमें एक प्रॉब्लम आना चाहिए. इफ यू थिंक केयरफुली, व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम अगर इतने सारे प्रोटॉन्स साथ में आ गए? जस्ट थिंक अबाउट इट. आई विल गिव यू 10 seconds टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ देयर आर सो मेनी न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन सच अ स्मॉल स्पेस? आई विल वेट फॉर 10 seconds. Okay, I don't know how many of you all have figured it out, but the problem is the principle that like charges repel each other, opposite charges attract each other. Okay, I'll repeat it. Opposite charges attract each other, like charges repel each other. So अगर सेम साइन होगा, सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, राइट? प्रोटॉन्स का चार्ज क्या है? पॉजिटिव. और न्यूट्रॉन्स का चार्ज क्या है? नो चार्ज, जीरो चार्ज. सो न्यूट्रॉन्स को तुम लोग भूल सकते हो, बट प्रोटॉन्स सबका चार्ज पॉजिटिव है. और इतने सारे प्रोटॉन्स इतने कम जगह में, एटम कितना छोटा होता है, राइट? इतना सा एटम होता है, वी कांट इवन सी इट. माइक्रोस्कोप से भी हम लोग नहीं देख पाते, इतना छोटा एटम है. उससे भी छोटा न्यूक्लियस है. तो अगर समझो तुम लोग का एटम एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा होगा, पर तुम लोग सेंटर में एक फुटबॉल रखोगे, उतना छोटा उसका न्यूक्लियस होता है. आई रिपीट दिस, पर पूरा का पूरा स्टेडियम एटम जितना बड़ा होता है, तो उसके सेंटर में जो तुम लोग फुटबॉल रखोगे उतना छोटा तुम लोग का न्यूक्लियस होता है. सो एटम खुद से ही इतना छोटा है, उससे भी छोटा न्यूक्लियस है, उसमें इतना सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ गया. सो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा. ओके, दे वोंट फील गुड व्हेन दे आर सो क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि दे आर ऑल रिपेलिंग ईच अदर. सो ये ऑलरेडी बहुत अनस्टेबल है. ओके, ये यूरेनियम बहुत अनस्टेबल है क्योंकि बहुत सारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ छोटे जगह में आ गया. Now what you are doing to that is, तुम एक और न्यूट्रॉन ले रहे हो और उसको इसके अंदर डाल रहे हो. ओके, यू आर शूटिंग अ न्यूट्रॉन इनसाइड अ यूरेनियम का न्यूक्लियस. सो यहाँ पे यूरेनियम का न्यूक्लियस ऑलरेडी बहुत अनस्टेबल है, उसमें तुम लोग एक न्यूट्रॉन को शूट कर रहे हो. सो एक न्यूट्रॉन आ जाने के बाद तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा. सो
तुम लोग ने देखा होगा राइट, कभी कभी हम लोग को सुबह से बहुत सारी चीजों पे गुस्सा आ रही है, फिर बाद में शाम को जाके कोई तो ऐसी चीज कर देता है जिससे हमको और गुस्सा आता है, और फाइनली वी जस्ट बर्स्ट आउट, उस पर बहुत गुस्सा कर देते हैं, बहुत चिल्ला देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। सो बेसिकली ऑलरेडी ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है, उसमें एक और न्यूट्रॉन आ गया तो बस खत्म हो जाता है और वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, उस दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, राइट। सो यूरेनियम न्यूक्लियस ऑलरेडी वेरी अनस्टेबल, उसमें एक न्यूट्रॉन तुम लोग ने शूट किया, इट बिकम्स वेरी अनस्टेबल एंड इट गेट्स बर्स्ट इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, ओके। वन पार्ट ऑफ दिस, सो बेसिकली जो दो छोटे पार्ट्स होते हैं उसको डॉटर न्यूक्लियर बोलते हैं, ओके। न्यूक्लियस एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में जब टूट जाता है, जो छोटे पीसेस है उसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियर बोलते हैं। सो एक होगा बेरियम, ओके, उसका साइन है, लेट मी ट्राई टू राइट इट डाउन, ये होगा बेरियम के, इसका साइन है Ba, एंड दूसरा होगा क्रिप्टॉन, ओके। सो क्रिप्टॉन का साइन है Kr, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। सो इसमें कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे तो वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, ओके। सो ये किस में स्प्लिट होने वाला है, बेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट होने वाला है, एंड देयर विल आल्सो बी एन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ओके। 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाया है बट एक और न्यूट्रॉन भी होगा। सो हमेशा 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं, सो 3 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाया है बट एक्चुअली देयर विल बी 3, ओके। सो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ओके। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस ऑफ वन अनस्टेबल न्यूक्लियर ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस टू बिकम मोर स्टेबल, और इसमें से बहुत सारा एनर्जी निकलेगा जब भी ये बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट होने वाला है, लॉट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड, ओके। सो एग्जैक्ट कितना अमाउंट है दैट इज आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, द एग्जैक्ट अमाउंट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो ये एनर्जी का यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट energy is going to be given off in this nuclear fission. So अभी ये जो 3 दूसरे न्यूट्रॉन्स निकले वो क्या करेंगे, आजू बाजू जो और यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे उसमें जाएंगे, ओके। सो ये न्यूट्रॉन समझो यूरेनियम के न्यूक्लियस में गया, वापस सेम चीज होने वाला है, वो और ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है, और 2 छोटे डॉटर न्यूक्लियर मिलेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन, और 3 नए न्यूट्रॉन्स बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो न्यूट्रॉन है वो किसी और न्यूक्लियस में जाएगा, 2 डॉटर न्यूक्लियर बनेंगे और एनर्जी मिलेगा, ओके। सो ऐसा चलते जाएगा। सो इफ यू सी, पहले तुम लोग को ये रिएक्शन स्टार्ट करने में क्या लगा, सिर्फ एक न्यूट्रॉन लगा, एक न्यूट्रॉन ने अगर जाके फिजन चालू कर दिया तो एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, 3 न्यूट्रॉन से 3 + 3 6 न्यूट्रॉन्स बनेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये चेन रिएक्शन होगा, बस तुम लोग को एक छोटा सा एडिशन करना है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद वो बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन स्प्रेड होने वाला है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ चेन रिएक्शन, ओके। चेन रिएक्शन में क्या होता है, you do one small part and because of that one small thing everything starts changing in the surroundings. तो यहाँ पे one fission reaction leads to other fission reactions because एक fission में 3 और neutrons निकलने वाले हैं। So this is basically your fission reaction, okay. So I have explained you all what fission reaction is. Now what I want you all to do is, well, I want you all to write this answer by yourself. मैंने तुम लोग कितने सारे आंसर्स लिख के दिए रहे कि इस तरीके से पॉइंट वाइज आंसर्स लिखते हैं, this is how you underline the important key points. So you'll have a lot of practice and you'll have seen how to write answers. So I want you all to write this answer by yourself, okay. How does nuclear fission take place? मैंने तुम लोग को already इस diagram से सब कुछ explain कर दिया। If you want to refer something, you all can refer the last paragraph of page number 50 to write this answer. वहाँ पे nuclear fission textbook में भी explain किया, and I have also explained you in this video. So just write the answer by yourself, okay. Point wise होना चाहिए तुम लोग का आंसर। I'm going to move ahead. Next we are going to see nuclear power plant. Now अगर तुम लोग को thermal power plant बहुत अच्छे से समझ गया, so nuclear power plant काफी easily समझ में आएगा, okay. So the first thing is thermal power plant में fuel क्या था, thermal power plant में fuel था कोल, ओके। कोल को जला के हम लोग को एनर्जी मिल रहा था। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल क्या होने वाला है, यूरेनियम 235। सो यूरेनियम 235 का फिजन रिएक्शन करके हम लोग को एनर्जी मिलने वाला है, क्योंकि एक बार जब फिजन होता है कितना एनर्जी मिलता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट।
सो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एक रिएक्शन में मिल रहा है, और वो एक चेन रिएक्शन है, सो एक रिएक्शन से 2 होंगे, 3 होंगे, 3 रिएक्शन से 9 होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो बहुत सारा एनर्जी मिलने वाला है। सो सब रिएक्शंस जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है, ओके। सो दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर रिएक्टर। सो दिस पार्ट इज योर न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होने वाला है। यहाँ पे कंट्रोल पॉड्स लिखा है। व्हाई डू यू नीड कंट्रोल पॉड्स? दे आर नॉट पॉड्स एक्चुअली, दे शुड हैव रिटन रॉड्स। आई एम श्योर ये लोग ने कोई मिस्टेक किया है। दिस शुड बी rods, okay. Yes, so why do you need control rods? So if you remember, एक चेन रिएक्शन है, राइट। एक रिएक्शन की वजह से 3 रिएक्शन होंगे, 3 रिएक्शन की वजह से 9 रिएक्शंस होंगे। ऐसे ये एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिएक्शन होंगे, और ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। सो तुम्हें इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए तुम क्या करोगे, कंट्रोल रॉड्स यूज करोगे। तो अगर कंट्रोल रॉड्स तुम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डाल दिया, सो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है, जो 3 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, उसमें से 1-2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और एक जो न्यूट्रॉन है वो जाके एक और रिएक्शन करेगा, वापस उसमें से 3 निकलेंगे, उसमें से 2 कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब कर लेगा, एक आगे और रिएक्शन करेगा। तो तुम लोग का रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, सर बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होगा। अगर ये कंट्रोल रॉड्स नहीं होंगे वहां पे, देन देयर विल बी अ बिग एक्सप्लोजन, ओके। सो यू वांट टू कंट्रोल द रिएक्शन, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग कंट्रोल रॉड्स। व्हाट विल कंट्रोल रॉड्स डू? दे विल एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। सो दैट इज ऑल हैपनिंग इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर, अभी न्यूक्लियर रिएक्टर में जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है। वो एनर्जी से तुम लोग क्या हीट कर रहे हो, अभी यहाँ पे जो लाइन है, लेट मी हाईलाइट दैट, यस। सो यहाँ पे जो है लाइन, लेट मी चेंज द कलर, यस। सो यहाँ पे जो लाइन दिख रही है तुम लोग को, ये लाइन में क्या है, ये लाइन में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी हेवी वाटर, देयर कुड बी लिक्विड मेटल ऑल्सो। तुम लोग को क्या चाहिए बेसिकली, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर में से जो कुछ भी हीट बाहर आ रहा है उसको कंडक्ट करने के लिए कोई तो चीज चाहिए। सो इट कैन ऑल्सो बी हेवी वाटर, इट कैन ऑल्सो बी लिक्विड मेटल, इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ द रिएक्टर। सो यहाँ पे ऐसा कुछ तो होगा जो हीट को या एनर्जी को कंडक्ट कर सकता है, ओके। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू सी, टेक नोटिस ऑफ इज बॉयलर, ओके। सो बॉयलर थर्मल एनर्जी में क्या था, जहां पे कोल को जला के पाइप में से वो पानी स्टीम में बन रहा है, सो वो यहाँ पे होने वाला है। सो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में लिक्विड मेटल या हेवी वाटर आ रहा है, वो बहुत ज्यादा हीट होके आ रहा है। वो हीट होके क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हुआ है। सो हीट होके अभी इस बॉयलर में आएगा। बॉयलर में क्या रखा है हमने, पानी रखा है, और जब ये बॉयलर का पानी इस गर्म चीज के कांटेक्ट में आएगा, तब वो स्टीम बन जाएगा। वो स्टीम बन के कहाँ पे जा रहा है, टरबाइन के ऊपर। सो स्टीम बन के जब टरबाइन के ऊपर जा रहा है, टरबाइन इज गोइंग टू रोटेट। बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग टरबाइन, यहाँ पे जनरेटर के अंदर का मैग्नेट रोटेट करेगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, रोटेटिंग मैग्नेट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा कंडक्टर पे, एंड वी आर गोइंग टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। यहाँ पे जो स्टीम बन गया था, ये नीचे आके इसका क्या नाम दिया, कंडेंसर। सो कंडेंसर का क्या काम है, बेसिकली स्टीम को ठंडा करके वापस पानी बनाना। सो ऐसे जो स्टीम टरबाइन को घुमा के वापस नीचे आ रहा है, उसको ठंडा करेगा कंडेंसर, ओके। ठंडा करने के बाद इट विल अगेन बिकम वाटर, एंड दिस वाटर इज अगेन गोइंग टू गो इन दिस बॉयलर। दिस इज योर अदर cycle, okay. The water is going to become steam from here, and the steam is going to go on the boiler. After going from the boiler, the steam is going to come down and get cooled because of the condenser. It is again going to be pumped inside the boiler so that it can become steam again, okay. This is another cycle. Next is very similar to what we had seen in thermal power plants, okay. So यहाँ पे एक कूलिंग टावर होगा। कूलिंग टावर का क्या काम है, यहाँ पे ठंडा पानी लो, ठंडा पानी लेके यहाँ पे कंडेंसर में लेके जाओ, ताकि उस स्टीम को ठंडा करके वाटर में बदल सके। सो यहाँ से पानी वापस अंदर कूलिंग टावर में जाएगा, और वापस ठंडा होके वापस कंडेंसर के अंदर है। सो दिस इज द थर्ड साइकिल। तो यहाँ पे 3 साइकिल्स है, ओके। बट अगेन वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ फॉर थर्मल, ओके। यहाँ पे कोई स्टैक नहीं दिख रहा है तुम लोग को। व्हाई? बिकॉज जब तुम लोग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, नो हार्मफुल गैसेज और गिवन आउट, ओके। कोई भी हार्मफुल गैसेस बाहर नहीं आ रहे, बट रेडिएशन बाहर आता है। अल्फा रेडिएशन आ सकता है, गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, ऑल दीस टाइप्स ऑफ रेडिएशन वी हैड सीन इन 9th ग्रेड, राइट। सो उन सब टाइप्स के रेडिएशन इसमें से बाहर निकल सकते हैं आफ्टर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, बट नो गैसेस आर बीइंग रिलीज्ड ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, इसलिए
इसको एक कंक्रीट के बड़े से वॉल में बंद रखते हैं। व्हाई डू नीड बड़ा कंक्रीट का वॉल? सो दैट अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया तो जो कुछ भी रेडिएशन है बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए। ओके, एकदम टाइटली बंद होता है, यहाँ पे कोई ह्यूमंस वगैरह अंदर जाते नहीं है, बिकॉज अगर रेडिएशन बहुत ज्यादा हमारी बॉडी पे आ गया, वी कैन इट कैन कॉज कैंसर। ओके, so yeah, that is nuclear power plant. One more thing I wanted to tell you all about nuclear power plant is it's basically my personal story. So when I was in 11th grade, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया था। 11th ग्रेड में था मैं, एक ऑनलाइन कोर्स किया था। You all can also do that. These courses are free online. यानी मैं जब 11th ग्रेड में था 7 years back, okay, so 7 साल पहले से भी ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे थे। So it was a University of Pittsburgh which is in USA. उसका एक कोर्स था on nuclear technology, and I had studied all this in detail in 11th grade. Okay, so I fell in love with the subject after taking that course. मुझे वो कोर्स इतना अच्छा लगा था कि मेरे को फिर न्यूक्लियर इंजीनियर बनना था। ओके, सो आई थॉट कि मैं न्यूक्लियर इंजीनियर बनूंगा। मैंने न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई भी किया था, बट आई कुड नॉट गेट इन फॉर सम रीजंस, and then I said, okay, I will study physics. I have done my master's in physics, right? And nuclear power plants mein physics is very important. So I said I'll do master's in physics, and then I might go again into nuclear engineering. But then my plans changed, and I decided that I don't want to be an engineer or a scientist anymore. But that's my story. Okay, nuclear energy, nuclear engineering, nuclear power plants are so cool. इतना सही होता है और इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है ये, that I am really in love with the subject. एंड इसकी खास बात ये है कि अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, कहीं पे भी कुछ पोल्यूशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कूलिंग टावर से क्या निकल रहा है? कूलिंग टावर से हॉट एयर इज कमिंग आउट एंड सम वाटर वेपर इज कमिंग आउट। हॉट एयर एज वेल एज वाटर वेपर, both of them are not harmful for the nature. Okay, so this entire thing, no pollution is being created. So that's the best part about nuclear power plant. And also कितना एनर्जी मिलता है न्यूक्लियर रिएक्शन से? सो अज्यूम for you, if one person will need how much coal for their entire life? पूरी जिंदगी में तुम लोग जितना भी एनर्जी यूज करोगे, जितना भी मोबाइल चार्ज करोगे, टीवी देखोगे, कंप्यूटर यूज करोगे, गाड़ी यूज करोगे, प्लेन यूज करोगे, ट्रेन यूज करोगे, सबकी एनर्जी के लिए तुम लोग को कितना कोल लगेगा? एक इंसान के लिए पूरा एक ग्राउंड को तुम लोग को कोल के डब्बों से भरना पड़ेगा, पूरे एक बड़े से ग्राउंड को। ओके, हमारा जो स्कूल का ग्राउंड है, वैसे 10-15 ग्राउंड को तुम लोग को कोल से भरना पड़ेगा। उतना कोल जलाना पड़ेगा एक इंसान के एनर्जी के लिए। अगर यही तुम लोग को न्यूक्लियर पावर प्लांट से उतना एनर्जी चाहिए, तो एक छोटा सा इरेजर होता है ना, उतना यूरेनियम ही तुम लोग का पूरा जिंदगी का एनर्जी क्रिएट कर देगा। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है। एक छोटा सा न्यूक्लियर प्लांट बहुत बड़ी सिटी को भी बहुत टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। दैट्स सो दीज आर द टू रीजंस आई रियली लव न्यूक्लियर एनर्जी। फर्स्ट रीजन इज बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है बहुत छोटे से क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम से, एंड सेकंड इज पोल्यूशन नहीं होता। ओके, सो that's one advantage of this nuclear power plant. Okay, let us see the flow charts. So if you want to summarize एकदम short में conclude करना, you all can remember this flow chart to remember कि nuclear power plant कैसे काम करता है। Okay, so first is nuclear reactor for fusion, nuclear fission. So nuclear reactor के अंदर nuclear fission reaction होने वाला है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने वाली है। वो एनर्जी किसके लिए यूज होगी? सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर। सो बॉयलर के अंदर उस एनर्जी से पानी स्टीम बनेगा। दैट स्टीम इज गोइंग टू गो ऑन द स्टीम टर्बाइन। ओके, एंड इट इज गोइंग टू रोटेट द टर्बाइन। बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग टर्बाइन, द जनरेटर इज गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर रिएक्टर, वेयर इज उसको फ्यूल कहां से मिल रहा है? द फ्यूल इज यूरेनियम और प्लूटोनियम। बोथ ऑफ दीज आर एलिमेंट्स। ओके, एंड बोथ ऑफ दीज कैन बी यूज्ड फॉर nuclear reactors as fuel, uranium or plutonium. So the nuclear reactor is getting its fuel from uranium or plutonium. Next, so the steam which is rotating the turbine, it comes back, and there is a system for conversion of it back into water. So steam gets converted into water because of the condenser, and that water is again pumped in the system for generation of steam from water using boiler, inside the boiler. Okay, so if you remember just this flow chart, ये flow chart भी अगर तुम लोग ने by heart कर लिया, you all will remember the process in the nuclear power plant. Okay, so there are many flow charts in this chapter. Okay, पिछले chapter में environmental management में there were many tables, so you all had to by heart lot of tables.
सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे फ्लो चार्ट्स है, सो मेक श्योर यू नो कि कौन से चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सो इस चैप्टर में फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लो चार्ट सब अच्छे से आने चाहिए. नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट. सो बेसिकली लास्ट टाइम भी बोला था मैंने लर्निंग सेशन नंबर 2 में कि there's a question called question number 10A. 10A question was explain with diagram step by step energy conversion in thermal power plant. और यहाँ पे एक ऐसा फ्लो चार्ट दिया है, told you all to write the answer for this question using this flow chart. None of you all did, so I wanted to do that from this time onwards. Okay, so here they have given how energy is transformed from one form to the other form in a nuclear power plant. So if you see here, first you have nuclear energy. That nuclear energy is turned into thermal energy while boiling the water. Okay, so when the water is boiled and it is converted into steam, steam बहुत जोर से travel करता है, बहुत fast travel करता है. So this thermal energy is going to be converted into kinetic energy. जब भी movement होता है, speed आता है, तब उसके पास kinetic energy होता है. This kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine, क्योंकि टर्बाइन अभी रोटेट करने लगता है. अगेन अभी टर्बाइन रोटेट करने लगेगा तो टर्बाइन के पास kinetic energy आएगी, and this kinetic energy is then converted into electrical energy using the generator. Okay, so this is how energy is being transformed from one form to the other form in the nuclear power plant. So using this step, you all have to answer the question number 10B. What is the question number 10B? Explain with diagram step by step energy conversion in nuclear power plant. That's your question number 10B. So using this, पहले ये copy करो, question लिखो पहले 10B, ये flow chart copy करो, and then write 4-5 points explaining how one energy form is being converted into another energy form. अगर तुम लोग को ये अच्छे से समझ गया flow chart, और अगर तुम लोग को पिछला वाला diagram अच्छे से समझ गया, then writing this should be very easy. And I right now also explained your ये कैसे लिख सकते हो. You have to just explain how energy is being converted from one form to the other using your own words. Okay, so I'm expecting in your notes that this answer to question number 10B should be there in your notes. Okay, let's move ahead. Then problems. अब तक मैंने तुम लोग को सब अच्छी चीजें बताई. Okay, न्यूक्लियर पावर प्लांट की. मुझे किस लिए न्यूक्लियर पावर एनर्जी इतना फैसिनेटिंग लगता है, why I wanted to become a nuclear engineer at some point of time. But there are also some problems with nuclear energy. Okay, so the first problem, the products after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiations. So products after fission of nuclear fuel यानी क्या? अगर तुम लोग ने यहाँ पे ध्यान दिया था, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं? यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियर जो है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन. बेरियम एंड क्रिप्टॉन बोथ आर रेडियोएक्टिव इन नेचर. ओके, सो अगर समझो तुम लोग का रिएक्शन हो गया और उसमें से बेरियम और क्रिप्टॉन तुम लोग निकाल दिया, और ऐसे बैरली तुम लोग इफ यू आर टच्ड इट बेयर हैंड्स, विद बेयर हैंड्स, इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर यू. उसमें से रेडिएशन निकल रहा है, और अगर रेडिएशन से एक्सपोज हो गया तुम्हारी बॉडी, इट कैन वेरी इजीली कॉज कैंसर एंड हार्म टू योर डीएनए. ओके, सो न्यूक्लियर फिजन के बाद जो कुछ भी बचता है वो बेरियम और क्रिप्टॉन, वो भी रेडियो एक्टिव है, एंड यू कैनॉट टच दैट थिंग और यू कैनॉट जस्ट थ्रो इट अवे. ओके, सो products after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiations. The products are called nuclear waste. How to dispose the nuclear waste safely is a big challenge before the scientists. So तुम लोग यूरेनियम ले लोगे, उसमें से एनर्जी निकाल लोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगा छोटे से यूरेनियम के टुकड़े में से, बट उसमें से एनर्जी निकालने के बाद, फिजन होने के बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट बचेगा वो भी रेडियो एक्टिव है. उसको कैसे तुम लोग एनवायरमेंट में डालोगे? कि अगर तुम लोग ऐसी एनवायरमेंट में डाल दोगे तो तुम लोग के वाटर्स पोल्यूट हो जाएंगे रेडिएशन से, तुम लोग का सॉइल पोल्यूट हो जाएगा, एयर पोल्यूशन हो सकता है, ये सब को हार्म होने वाला है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन विच इज कमिंग आउट. सो हाउ कैन यू डिस्पोज यानी फेंक देना. ओके, डिस्पोज यानी फेंक देना. हाउ विल यू थ्रो द न्यूक्लियर वेस्ट? दैट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि ऐसे तुम लोग फेंक नहीं सकते हो. सो अभी क्या करते हैं, वो लोग बड़ा सा कंक्रीट का एक टैंक बना देते हैं और उसमें सब रेडियो वेस्ट रख देते हैं, बट ऐसा कब तक तुम लोग रखोगे? That's a big question to us. Okay, nuclear waste का क्या करना है? Second point, an accident in nuclear power plant can be very fatal. Fatal मतलब deadly. Okay, बहुत easily death हो सकती है. कब? When an accident occurs in a nuclear power plant. This is because the accident will result in release of very harmful radiations. I told you, right? In this diagram, ये जो बड़ा सा तुम लोग को black color का box दिख रहा है, ये black color के box में क्यों रखा है? It's because ये अंदर बहुत ज्यादा रेडिएशन
क्रिएट होने वाला है बिकॉज ऑफ द फिजन रिएक्शन. सो अगर समझो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो जो कंक्रीट का वॉल है उसके अंदर ये सब रेडिएशंस रहेगा. और समझो अर्थक्वेक आ गया, समझो एक प्लेन इसके अंदर क्रैश कर गया, या फिर सुनामी आ गई और ये पूरा का पूरा कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है टूट गया, अगर ऐसा कुछ हो गया तो अंदर का सब रेडिएशन बाहर निकलने वाला है. ओके, एंड दैट इज एंड दिस में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशंस. और अगर वो रेडिएशन बाहर आ गया देयर कुड बी प्रॉब्लम. Again, you all can see documentaries on Fukushima disaster. You all can see documentaries on 3 Mile Island disaster. These are very interesting things to explore. So it's not given in your textbook, but तुम लोग को curiosity है, then you all can see the documentaries on Fukushima disaster and 3 Mile Island disaster. ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, वहां पे कभी अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे डिजास्टर हो गया, so on and so forth. So कितना problems हुआ उसकी वजह से that they have explained that. Okay, but still given problems, I really like nuclear energy and I think India should make more and more nuclear power plants. Okay, let's move ahead. Again, you all need not copy this because it's given in your textbook. मैंने as it is उसको copy paste किया. Okay, now there's an end of chapter question, question number 11b. So it is absolutely necessary to control fission reaction in the nuclear power. So this is given under give reasons. Okay, so basically इसका question है give reason. It is absolutely necessary to control the fission reaction in nuclear power plants. So I've given you all the answer during the explanation of nuclear fission. Try to write the answer by yourself. I'll wait for 5 seconds for you all to try to write the answer. Okay. Okay, I hope you all paused the video and have written the answer. अगर तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से आंसर लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, you all are getting everything spoon fed to you all. अगर तुम लोग को आदत लग गई है कि आंसर कॉपी कर लेना और खुद ट्राई नहीं करना आंसर लिखना, it will be difficult for you to write answers in the exam. Okay, so genuinely try to write answers by yourself when I'm giving this, giving you time to pause and write the answer. Okay, अगर तुम लोग को प्रैक्टिस नहीं रहेगा आंसर लिखने का, you all will have a difficult time writing answers in the exam. क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले, वो अलग आने वाले हैं. सो यू ऑल शुड नो हाउ टू राइट दी आंसर्स. तुम लोग को आंसर पता है बट लिखना कैसे उसका प्रैक्टिस होना चाहिए. सो दिस इज द आंसर आई हैव कम अप विथ. फर्स्ट पॉइंट, large amount of energy is generated in a matter of seconds in a fission reaction. Okay, so fission reaction में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी बन रही है. If the fission reaction is not controlled, it can prove fatal. अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, we had seen right, एक फिजन रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर ये 3 न्यूट्रॉन जाके 3 और अलग फिजन रिएक्शन करेंगे, फिर 3 3 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे. 9 न्यूट्रॉन्स के बाद 9 रिएक्शंस, राइट. तो सब बहुत ही जल्दी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है. So if fission reaction is not controlled, it can prove fatal. Fatal यानी deadly. Okay, people can die because of it. Next, uncontrolled fission reaction may lead to the emission of harmful radiation. अगर उसको control नहीं किया, there is going to be a big blast, and because of that blast, all the harmful radiations which come from nuclear fission reactions or from the uranium or barium and krypton, they can all come out. Okay. It can also lead to meltdown of nuclear power plant. Meltdown मतलब क्या? Meltdown मतलब basically एक accident of a nuclear power plant. So जब भी accident होता है एक nuclear power plant में, उसको meltdown ये word use करते हैं. Meltdown ये destroy हो जाना, कुछ तो बहुत ही disastrous हो जाना. Okay. So these were the 3 points I came up with. Okay. It's और जब भी तुम लोग खुद का आंसर लिख रहे हो एंड देन यू विल मैच इट विद माय आंसर्स, ट्राई टू एनहांस योर आंसर्स. ऐसा नहीं कि मैंने जो आंसर लिखा है वही सही है. इफ यू हैव योर ओन यूनिक वे एंड यूनिक पॉइंट्स टू से, तुम लोगों ने खुद के वर्ड्स में लिखा है, दैट इज आल्सो ओके. ओके, सो यस, दैट्स द आंसर टू आवर गिव रीजन 11b. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज गिवन अंडर द tag compare on page number 51. They are saying observe the schematic of thermal power plant and the nuclear power plant. Schematic यानी ये जो दो डायग्राम्स है इसको बोलेंगे schematic diagrams of thermal and nuclear power plant. Discuss what are the similarities and differences between two. तुम लोग को क्या डिस्कस करना है? Obviously we are seeing this on a video, so तुम लोग डिस्कस नहीं करोगे, but you all write it down. Okay, write it down in your notebooks. What are the similarities and differences between the two? I'm not giving the answer to this to you all. Okay, I might ask this to you all in a quiz question. Quiz question में शायद मैं पूछ दूं,
but उसमें लिखने के लिए you all can try writing the answer here itself, okay, in the notebook. So when you're submitting the notes, I should be able to see what are the similarities, दोनों में क्या same है, and what are the differences, दोनों में क्या अलग अलग है. Okay, so I'm trusting you all to do this part, okay, in the notebook as well as in the quiz. We are going to move ahead. So अब तक हम लोग ने कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन देखा है? हम लोग ने फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन देखा है. बट फिजन के अलावा एक दूसरे टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन. ओके, फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस ये तुम लोग के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, इट्स आउटसाइड टेक्स्ट बुक नॉलेज. सो इफ यू आर फीलिंग एंथुजियास्टिक, क्यूरियस अबाउट दिस, आई वुड हाईली रिकमेंड तुम लोग जाके फ्यूजन न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में सर्च करो. ओके, बिल गेट्स, इफ यू नो, बिल गेट्स ने बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट्स के रिसर्च के लिए. अभी तक हम लोग ने अच्छा न्यूक्लियर प्लांट बनाया नहीं है फ्यूजन रिएक्शन यूज करके, बट अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि फ्यूजन से हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर बने. सो सन में इतना एनर्जी कैसे आता है? सन इतना कितने सालों से जल रहा है, राइट? सो उसके अंदर का जो फ्यूल है वो खत्म कैसे नहीं होता? सन तो इतने टाइम से जल रहा है. तो सन को जो पावर करने वाला चीज है उसके अंदर एक छोटा सा रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर. तो सन को क्या पावर करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पावर करता है. एंड वही अब साइंटिस्ट अपने अर्थ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो समझो एक छोटा सा सन हम लोग ने एक रिएक्टर के अंदर बना दिया, किसी बिल्डिंग के अंदर. सो हम लोग को अनलिमिटेड एनर्जी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का टेंशन ही नहीं फिर कभी. सो आई हाईली रिकमेंड, इफ यू आर क्यूरियस इनफ, ट्राई टू फाइंड न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट्स. just type it on Google, YouTube, you all should find lot of useful resources. Okay, again, not needed, ये टेक्स्ट में दिया नहीं है, it won't come in exam, just for curiosity sake. So that's it for today. The 3 words we learned today was, first was dispose. Dispose यानी throwing away, फेंक देना. Fatal यानी causing death. ये casing लिखा है मैंने, this is wrong. Okay, इसका spelling wrong है, just correct this spelling. CAU आएगा यहाँ पे A के बाद. Causing death. Okay, fatal यानी causing death, जिससे लोग मर सकते हैं. नेक्स्ट इज मेल्टडाउन. मेल्टडाउन यानी बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो एक्सीडेंट होता है उसको मेल्टडाउन बोलते हैं. एंड फ्रॉम द लास्ट लर्निंग सेशन आई हैड स्टार्टेड दिस न्यू एक्टिविटी व्हिच वाज मेकिंग सेंटेंसेस. सो आफ्टर यू राइट मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंस, मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक, ऑल्सो मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ दोज वर्ड्स. ओके, जैसे तुम लोग हिंदी मराठी में करते हो ना, पहले एक वर्ड लिखते हो उसका मीनिंग और नीचे उसको वाक्यामध्ये प्रयोग करा, right? Same thing you have to do here. Okay, use this in a sentence. In the last notes I did not see many people doing that. So make sentences out of these words so that it's ingrained in your mind. उसको कैसे use भी करना है. तुम लोग को सिर्फ meaning नहीं पता, but तुम लोग उसको normal language में use भी कर सकते हो. तुम लोग उसको answers में भी use कर सकते हो. Okay? Yes. So that's it for today. Hope you all understood nuclear reactions and nuclear power plants. It's a topic which is very dear to my heart, very near to my heart. एक समय था जब मुझे न्यूक्लियर इंजीनियर बनना था, एंड आई स्टिल फील न्यूक्लियर एनर्जी इज द वे. अगर इंडिया को अपने एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आई थिंक कोल से अपना एनर्जी सॉल्व नहीं होगा. कोल में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है. सोलार हमेशा सन नहीं होता, बीच में क्लाउड्स हो जाते हैं तो सोलार काम नहीं करता. विंड से भी प्रॉब्लम है कि विंड हमेशा नहीं होती है. सो आई थिंक द बेस्ट वे टू make more energy without harming the environment is nuclear energy, and I think it's a very fascinating subject. Okay, that's it for today. See you guys tomorrow. See you guys. Bye.